Transformation means to transform something or to transform someone. That means to change the form of something or someone. So if we say what should be the meaning of transformation of the sentence? Simply to change the formation of the sentence, to change the grammatical structure of the sentence. Now, if I ask you to change the following sentences into interrogative and negative one, so how you will change? I am having a beautiful doll. I am having a beautiful doll. Change the sentence into negative. So obviously your answer will be I am not having a beautiful doll. And if I ask you the same sentence to change in interrogative, so your answer will be am I having a beautiful doll? But if we observe these two sentences with the change of transformation, both the sentences would be absolutely incorrect. So, what should be the formation or what should be the changes of both these given sentences according to the rules of transformation? I am having a beautiful doll. Negative. I am not having an ugly doll. I am having a beautiful doll. Interrogative. Am I not having a beautiful doll? That means, of course, I am having a beautiful doll. So, if we observe the changes in both the sentences, we find that we have changed the structure of both the sentences, but we have not changed their meaning. So, with these sentences, we can understand it very simply. The meaning of transformation of the sentences should be to change the structure of any sentence without changing its meaning. To change the formation of the sentence without changing its sense. So simply we can say transformation means change the sentence but not its sense. To change the sentence but not its meaning. Thus, transformation has been divided in different parts. If we observe many kinds of sentences, compound sentences, complex sentences, even active passive are parts of transformations only, because if we observe all these sentences, we only change the structure of the sentences, but we never change the meaning of all the sentences whenever we change the sentences. So, in this session, I have taken different parts of transformation of the sentences. Basically, I am starting with some basic rules of transformations. So, I have divided this session in different parts. After each part, we will do exercises so that we might understand each and every formation properly. So, let us start our class, and it is my humble request, after learning each part, try to do the exercises from your grammar books. I will also provide you some exercises, but with those exercises you should do the exercises from your own grammar books as well. Okay, so let's start our class. So if we see the definition of Nesfield, according to Nesfield, to transform a sentence is to change it from one grammatical form to another without altering its sense. एक सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से चेंज करके दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में फॉर्म करना, उसके मीनिंग को चेंज किए बिना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. So the changes of transformation can be taken place in the following ways: removing or adding to, interchanging assertive and interrogative, interchanging affirmative and negative, then interchanging assertive and exclamatory, and then interchanging degree of comparison. So we will
understand all the parts one by one, step by step with different sessions. So kindly keep on making revision and keep on practicing with exercises as well. So first of all, we have taken removing or adding to. Now see, removing and adding to has been again divided in different parts. So we will study one by one. Be very much attentive with each of the rules. Okay, so first one, how the changes take place. First one, to plus adjective infinitive. Infinitive, to plus first form of the verb. If you are having in your sentence, if you are having to, adverb to plus adjective, then again to and then infinitive means after adjective, sorry, you will have infinitive to plus first form of the verb. The first two will be replaced with so, then the second two will be replaced with any of the phrases that subject cannot, that subject could not, according to tenses. टेंस यानी कि अगर आपका प्रेजेंट है तो कैन नॉट, अगर आपका टेंस कुड नॉट पास्ट में है, लाइक यहाँ पर वॉज अगर होता तो ये कुड नॉट में चेंज हो जाता, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर विल नॉट, चलिए ठीक है। तो कभी कभी क्या है कि ये विल नॉट या शुड नॉट और मस्ट नॉट में भी चेंज हो जाता है। अभी हम इसको बाद में समझेंगे, पहले पूरा कंसंट्रेशन रखिए आप कैन नॉट और कुड नॉट पर, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट विथ एग्जांपल। ही इज टू क्यूरियस टू वेट, ही इज टू क्यूरियस टू वेट। नाउ सी, टू विल बी रिप्लेस्ड विथ सो, ओके, टू क्यूरियस टू वेट, ठीक है। टू वेट यहां पर हम लेंगे अब इस सब्जेक्ट को, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, यानी कि नॉट ही इज टू क्यूरियस टू वेट। इसका मीनिंग क्या है कि वो इतना ज्यादा उत्सुक है कि वो इंतजार नहीं कर सकता। जब भी डबल टू आता है तो उसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव में जाता है। टू एंड टू हमेशा मीनिंग उसका जो होता है वो किस में जाता है, हमेशा वो नेगेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कैन नॉट में या कुड नॉट पे चेंज होगा। अब यहाँ पर टेंस का ध्यान रखना होगा, अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो could not. He is so, it will be like this. He is so curious that he cannot wait. Okay. Then Shivam is too emotional to see any painful sight. Shivam is so emotional that he cannot see, that he cannot see any painful sight, ठीक है। See one more example now. She is so angry, she is so angry that she will not listen to me. She is so angry that she will not listen to me. अब यहाँ पर देखिए हमने इसको कैन नॉट में चेंज नहीं किया बल्कि विल नॉट में चेंज किया। तो कभी कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कैन नॉट और कुड नॉट के अलावा अदर ऑक्सिलरी वर्ब से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। वो इतना नाराज है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट करने को आता है हमारे पास, हमको मिलता है, तो उसको अपोजिट में हम किस तरह से चेंज करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। यानी कि अब क्या होगा कि जो सो है, सो को हम रिप्लेस करेंगे टू से, ठीक है। सो को हम रिप्लेस करेंगे टू से, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो फ्रेज है दैट शी कैन नॉट लिसन टू मी सपोज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज रिमूव करके सिर्फ जो है वर्ब को लेंगे, यानी इन्फिनेटिव को लेंगे।
शी इज टू एंग्री, शी इज टू एंग्री टू लिसन टू मी। ठीक है, जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से शुड नॉट और मस्ट नॉट में भी चेंज हो सकता है। लाइक दिस एग्जाम्पल, द रूल्स आर टू हार्ड टू बी ब्रोकन। द रूल्स आर so hard that they must not be broken। ओके, तो हमको कभी कभी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा कैन नॉट या कुड नॉट से ही चेंज होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आएंगे, आपके 95% तो केसेस है कैन नॉट और कुड नॉट पर फर्स्ट आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए। इसके बाद आपके इस तरह से फ्यूचर में या फिर मस्ट मॉडल से भी चेंज हो सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा एड टू और एडिंग टू। सी इन योर एग्जामिनेशंस यू विल गेट द क्वेश्चन लाइक एड टू और रिमूव टू। ओके, तो अब हमको क्या करना है कि जस्ट उसी रूल का अपोजिट करना है। ठीक है, हमने क्या किया था कि टू को हमने किस में चेंज किया था, हमने टू को सो में चेंज किया था। ओके, नाउ वी विल जस्ट कन्वर्ट इट अगेन, सो विल बी कन्वर्टेड इनटू टू। ओके, सो यहाँ पर जो है वो टू में चेंज होगा। ठीक है, सॉरी, शी इज सो क्यूरियस दैट शी कैन नॉट वेट। ओके, सो शी इज टू curious, she is too curious। okay, after that हमने क्या किया था, जो सेकेंड टू था उसको लिया था और उसको जो पूरा का पूरा जो टू प्लस इन्फिनेटिव है उसको किस में चेंज किया था, पूरा का पूरा दैट से लेकर के आगे पूरा फ्रेज में। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि वर्ब को कैच करना है, उसके पहले हमने यू टू का यूज करना है और उसके पहले का जो पूरा का पूरा फ्रेज है उसे कट कर देना है। ठीक है, सो शी इज टू क्यूरियस टू वेट। ओके, यानी कि उन्हीं रूल्स का जस्ट हमने अपोजिट कर देना है। ओके, टू को सो में चेंज किया तो अब हमने वापस सो को टू में चेंज किया और टू को फिर एनी ऑफ द फ्रेजेस, इन सारी फ्रेजेस में चेंज किया था, तो अब इन सारे फ्रेजेस को वापस टू में चेंज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमें इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना होगा। ओके, सो शी इज टू क्यूरियस टू वेट, दैट मीन्स शी इज सो क्यूरियस दैट शी कैन नॉट वेट। Okay, after that I was so tired that I could not complete my work at night। Okay, सेम उसी तरह से, बट अब हमको क्या ध्यान रखना होगा, टेंस का भी ध्यान रखना होगा। So I was too tired, I was too tired to complete। वर्ब को कैच करना, उसके पहले टू का यूज करना है, टू complete my work at night, my work at night। ठीक है ना, यानी कि पूरा का पूरा अपना फ्रेज कट करके आगे का सेंटेंस एस टू एस लिख देना है। ठीक है, सो दिस इज एडिंग और रिमूविंग टू। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रिमूविंग टू और एडिंग टू। सेकेंड पार्ट, टू प्लस एडजेक्टिव इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में आपका आएगा, ये हम कह सकते हैं नेगेटिव इन्फिनेटिव। ठीक है, तो अब आपको आएगा नॉट प्लस टू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है एक डिफरेंस इन दोनों सेंटेंसेस में। जब हमारे पास इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है, जब हमको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको मिल रही है, ठीक है, तो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो जाता है नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास नॉट टू आता है, नॉट टू प्लस V1, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव में चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि नॉट है तो मीनिंग पॉजिटिव है, नॉट नहीं है तो मीनिंग नेगेटिव है। ठीक है, नॉट
है तो मीनिंग पॉजिटिव है, नॉट नहीं है तो मीनिंग नेगेटिव है, ठीक है। तो ही इज टू ब्रेव नॉट टू फेस ऑल द challenges. That means he is so brave that he can face all the challenges. ठीक है, वो इतना बहादुर है कि वो सारे challenges को फेस कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही उसी तरह से to को हम चेंज करेंगे so में, not to any of the phrase that subject can, that subject could मीन्स आपसे अब हमारे सारे नॉट जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे अब, क्योंकि अब हमारा मीनिंग जो है पॉजिटिव में बनाना है। So he is too brave not to face all the challenges. फर्स्ट टू को लिया, उसे सो पे चेंज किया। He is so brave that he can face all the challenges. He is so brave that he can face all the challenges. Smita is too depressed. Smita is so depressed not to meet the counselor. अब यहाँ पर नॉट टू मीट द काउंसलर, स्मिता इज टू डिप्रेस नॉट टू मीट द काउंसलर, यानी कि वो स्मिता जो है वो इतनी डिप्रेस्ड है कि उसे काउंसलर से मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर किसका यूज होगा, स्मिता इज सो डिप्रेस्ड दैट शी मस्ट मीट द काउंसलर। ओके, तो फिर इसके बाद आता है एडिंग टू, ठीक है। उसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा एड टू और रिमूव टू, ठीक है। यानी कि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा द रूल्स आर टू हार्ड टू बी ब्रोकन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा रिमूव टू, ठीक है। तो रिमूव टू को रिमूव करके हमें सेंटेंस बनाना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, टू को ऐड करना है, ठीक है। तो ही इज सो इंटेलिजेंट, उसी तरह से बिल्कुल सो को चेंज करेंगे, चेंज में ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट। ओके, तो हमने दैट ही कैन और कैन नॉट को किस में चेंज किया था, तो कैन नॉट को हमने चेंज किया था सिंगल टू में यानी इन्फिनेटिव में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैन है और नॉट नहीं है, तो हमको किस में चेंज करना है, नॉट टू में, ठीक है। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व, he is too intelligent not to solve all the exercises without any mistake. He is too intelligent not to solve, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि he is too intelligent, हमारा एडजेक्टिव तक सेंटेंस को पढ़कर स्टॉप होना है, उसके बाद हमें फिर से उसी तरह से सीधे वर्ब को कैच करना है। वर्ब से पहले हमें टू का यूज करना है, ठीक है, टू सॉल्व, ठीक है, और उसके बीच का जो पार्ट है उसे कट कर देना है, ठीक है। सो ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल दी एक्सरसाइजेस विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। हमको बस इतना ध्यान रखना है, कैन नॉट है तो सिर्फ टू में चेंज होगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कैन है तो नॉट टू plus first form of the verb. Okay, now let's see the third example. Next third part of removing or adding to plus adjective, for plus noun plus infinitive. The problem is too difficult for Aditi to solve. See, till now we were having after to plus adjective and indirectly we were having infinitive. But now we are having for plus noun as well, for plus noun as well. So in this condition, how the transformation will take place?
same to will be converted in so. The phrase for to will be changed in that plus noun. Then to, again to will be changed into cannot, could not, will not, or must not, or should not. Okay. See example. Problem is too difficult. To will be replaced with so. For will be replaced with that. For will be replaced with that. Then noun will remain same. Its position will not be changed. The problem is so difficult. The problem is so difficult that Aditi can not solve it. The problem is so difficult that Aditi cannot solve it. ठीक है, यहाँ पर it भी यूज होगा. ये प्रोनाउन किसको एक्चुअली किसको रिजेंबल कर रहा है? प्रॉब्लम जो है उसको हमें बताना ना, क्या सॉल्व नहीं कर सकती है प्रॉब्लम को. ओके, सो द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट अदिति कैन नॉट सॉल्व इट. ठीक है, यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हमको टू को ऐड करना होगा, इफ यू हैव टू ऐड टू, इन सच कंडीशन यू विल हैव टू रिमूव दिस प्रोनाउन. द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर अदिति टू सॉल्व इट. यहाँ पर आप इट नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप इट नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर अदिति टू सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्लॉज में सेंटेंस है हमारा, है ना. हमारा जो सेंटेंस है वो एक ही क्लॉज में है, तो ऑलरेडी हमें पता है किसकी बात हो रही है, प्रॉब्लम की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पर जो सेंटेंस है ये टू पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड हो गया है. ठीक है, कंजक्शन भी है बीच में, तो ये टू क्लॉजेस हैं हमारे. ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसको क्लियर करने के लिए प्रोनाउन को का यूज किया, बताने के लिए कि क्या क्या सॉल्व नहीं हो सकता प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट वन, एडिंग टू. द पाथ इज सो डिफिकल्ट दैट कशिश कैन नॉट फॉलो इट. अगेन सो विल बी रिप्लेस्ड विद टू. द पाथ is too difficult. The path is too difficult that will be replaced with for. ठीक उसी तरह से. ठीक है, टू को हमने फॉर सो में चेंज किया था, फॉर को दैट में चेंज किया था, अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा. दैट को हमने फॉर में चेंज किया, फिर वही हमारा जो नाउन है कशिश है ना, वो सेम टू सेम रहेगा हमारा नाउन. ठीक है, आगे का कैन नॉट रिमूव करके वर्ब को कैच करते हुए उसके पहले टू का यूज करना है. द पाथ इज टू डिफिकल्ट फॉर कशिश. द पाथ इज टू डिफिकल्ट फॉर कशिश टू follow and then it will again be removed. Okay, see again, understand again. The path is too difficult. ठीक है, so को हमने किस में चेंज किया? टू में चेंज किया. दैट को हमने किस में चेंज किया? फॉर में चेंज किया. ठीक है, नाउन एस टू एस रहेगा. ठीक है, इतना करने के बाद हमको सीधे उसी तरह से कैच करना है कि वर्ब कहाँ है हमारी. ठीक है, तो वर्ब है हमारी फॉलो. तो फॉलो से पहले हमको क्या करना है? टू को ऐड करना है. ठीक है, और उसके पहले का जो पार्ट है नाउन के बाद का, उसे रिमूव कर देना है. ठीक है, सो द पाथ इज टू डिफिकल्ट फॉर कशिश. The path is too difficult for Kashish to follow. ओके, और क्योंकि नाउन ऑलरेडी हमारा आ गया, ये एक ही क्लॉज में सेंटेंस है, तो अब हमारा ये जो इट है वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर प्लेस नहीं होगा. क्लियर? देन कम्स नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट ऑफ टू प्लस एडजेक्टिव फॉर प्रोनाउन एंड इन्फिनेटिव. दैट मीन्स अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि फॉर के साथ नाउन का यूज हुआ है, लेकिन अब क्या हो रहा है? अगर फॉर के साथ प्रोनाउन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे चेंज करेंगे?
to will be replaced with so. For that objective case, this objective case will be changed into subjective case. ठीक है, to ठीक उसी तरह से बाकी का रिप्लेस होगा. ठीक, टू टाइट. ओके, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अगेन टू को रिप्लेस करेंगे सो से. द टैप इज so tight for that me. प्रोनाउन है, उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे. me को सब्जेक्ट हो गया I. The tap is so tight that I is present tense है, cannot open. The tap is so tight that I cannot open it. Okay. Now again adding to. The depth of the river is so deep that I cannot dive. Again so will be replaced with to. That with for, जस्ट उसका अपोजिट होता जाएगा. मी अब सब्जेक्टिव केस है तो कैसे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में. ठीक है ना. द डेप्थ ऑफ द रिवर, द डेप्थ ऑफ द रिवर इज टू डीप for me to dive. The depth of the river is too deep for me to dive. ठीक है ना. तो कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप जस्ट उसका अपोजिट करके देख सकते हैं. पहले आंसर लिख ले, उसके बाद जस्ट अपोजिट करके देखें. अगर टू को रिमूव करके जो आपके जो रूल्स है वो आप उस पर आप कॉन्फिडेंट हो तो वापिस से उसको क्या है अपोजिट करके देखते जाओ. ठीक है, तो जब अपोजिट करके आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो सेंटेंस है, हमने जो कन्वर्ट किया है सेंटेंस ऐड करके, वो ठीक है या नहीं. ठीक है, तो दिस वन इज रूल 4 ऑफ रिमूविंग टू. यहाँ पर एक चीज और है कि आप चाहे तो यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, द tap is so tight that it. यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैप जो सब्जेक्ट है उसको प्रोनाउन बनाते हुए हम उसको पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं. द टैप इज सो टाइट दैट it cannot be opened by me. ठीक है, यहाँ पर मी पैसे में चला गया. The tap is so tight that it cannot be opened by me. ठीक है, इसी तरह से हमने जो नाउन का चेंज किया था उसमें भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं. The problem is so difficult that it cannot be solved by Aditi. ठीक है, तो हमने एक्टिव में तो चेंज किया ही, इसे हम पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं. दोनों ही करेक्ट होंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, रिमूविंग और एडिंग टू मीन्स टू प्लस एडजेक्टिव फॉर प्लस नाउन. ओके, अब देखिए इसमें क्या चेंज है, ये हमने अभी किया था टू प्लस एडजेक्टिव फॉर नाउन एंड देन इन्फिनेटिव. यहाँ पर भी हमारा फॉर नाउन है और वहां पर भी है, बट अंतर क्या है कि यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है मीन्स नाउन के बाद इन्फिनेटिव दिया है, बट यहाँ पर क्या है कि
सेंटेंस नाउन पर ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई इन्फिनेटिव नहीं है। हिज हार्ट इज टू फुल ऑफ वर्ड्स, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर आगे का जो फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, उसमें आपको मीनिंग निकाल तक खुद मीनिंग को समझना है, फिर आपको एक्सपेंड करना होगा सेंटेंस को सेकंड क्लॉज में, ठीक है। यानी हिज हार्ट इज टू फुल ऑफ वर्ड्स, यानी कि उसका जो दिल है वो इतना भरा हुआ है कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। नाउ हाउ यू विल चेंज इट? First of all, again to will be replaced with so. Then second clause either frame in active voice or passive voice, या तो active में बनाना है, passive में बनाना है second clause. Second thing, for. यहाँ पर जो for words है, यहाँ पर ये for words आपका पूरा का पूरा फ्रेज जो है वो इस फ्रेज में चेंज हो जाएगा, या तो ये एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो किस तरह से चेंज होगा, इसके मीनिंग को हमें समझते हुए लिखना है, ठीक है। तो हिज हार्ट इज टू फुल ऑफ वर्ड्स, हिज हार्ट इज so full that it cannot be expressed in words, ठीक है। और his heart is so full that he cannot express anything in words. His heart is so full that he cannot express in words or express anything in words, ठीक है। तो हम दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस है, या तो हम चाहे तो एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हैं या फिर पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। His heart is so full that he cannot express anything in words, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, ठीक है। और यहाँ पर his heart is so full that it cannot be expressed in words, यहाँ पर ये हो गया पैसिव वॉइस। ध्यान रखना होगा कैन नॉट के बाद और कुड नॉट के बाद हमें बी का यूज करते हुए थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, पैसिव वॉइस हमने किए ही है, लास्ट सेशन में पैसिव वॉइस ही फिनिश किया है। अगर आपने पैसिव वॉइस अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसके 5 डिफरेंट सेशन बनाए हुए हैं, तो चाहे आप तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहां पर आपको पैसिव वॉइस की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर सारे चैप्टर्स आप प्रैक्टिस के साथ पैसिव वॉइस को पढ़ सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हमारा अगेन फिर से आता है एडिंग टू, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर his sorrow is so deep that it cannot be expressed in tears, और his sorrow is so deep that he cannot express in tears, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हमको अगेन so को रिप्लेस करना है to से, ठीक है। his sorrow is too deep, ठीक है। इसके बाद हमको कैच करना होगा नाउन। देखिए अभी तक हम क्या कैच करते थे, इन्फिनेटिव को कैच करते थे, पर अब हमको सिर्फ नाउन को कैच करना है, क्योंकि बीच का आपका सारा का सारा जो फ्रेज है वो रिमूव होगा, और वर्ब के बाद तुरंत बाद क्या है, हमें क्या रखना है, फॉर रखना है, और फिर इसको नाउन को लेना है। His sorrow is too deep for tears, ठीक है। His sorrow is too deep for tears, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना होगा ना कि अगर वहां पर तो क्या था, इन्फिनेटिव था, ठीक है। जो उसके पहले जो था वो एडजेक्टिव फॉर नाउन के बाद इन्फिनेटिव है, तो क्योंकि वो इन्फिनेटिव है तो हमें वर्ब को कैच करना, पर यहाँ पर क्या है, यहीं पर सेंटेंस फिनिश हो गया है नाउन पर ही, तो हमें किसको कैच करना होगा, नाउन को कैच करना होगा, और नाउन से पहले हमको फॉर का यूज करना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इजी है। His sorrow is too deep for tears, ठीक है। And now comes the last one, removing to. Removing to. Now here you can observe that we are having to, but with TOO2, neither we are having infinitive nor we are having for or plus noun, ठीक है। यहाँ पर सिंगल टू है लेकिन उसके साथ फॉर भी है, यानी कि ये हमारा जो पेयर है वो हमारा किस तरह से है, 2 + 4, ठीक है। ये पेयर है हमारा,
लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ टू है और उसके साथ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, टू विल बी रिमूव्ड कंप्लीटली, ओके। यानी कि पहले हमने क्या किया था, टू को तो रिमूव पहले भी किया था लेकिन उसको रिप्लेस किया था सो से, पर यहाँ पर अब वो रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है, बल्कि पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो एडजेक्टिव है विल बी चेंज्ड इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में यानी कि जो थिन है इसका थिनर बनेगा, ठीक है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। आफ्टर दैट यूज देन, ऑब्वियस सी बात है जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ देन तो आना जरूरी है। देन प्रोनाउन, देन शुड बी और मस्ट बी, और शुड हैव बीन और मस्ट हैव बीन, ठीक है। देखिए पहले समझिए किस तरह से बनता है। अंकिता इज थिनर देन शी शुड बी, और अंकिता is thinner than she should have been, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये जो टू है कई तरह से चेंज हो सकता है, ठीक है। को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं करना चाहते हैं तो ये इसका एक और भी बहुत ही इजी वे भी है, इसको आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको रूल सारे पता होने चाहिए, हमें तरीके सारे पता होने चाहिए कि कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो टू है कभी कभी ओवर में भी चेंज हो जाता है, कभी कभी एक्सट्रीमली में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस जो है, देखिए अब एक सेंटेंस है कई तरह से चेंज हो सकता है, ठीक है। अंकिता इज ओवर थिन, अंकिता is extremely thin, Ankita is thinner than she should be, then Ankita is thinner than she should have been. Ankita is thinner than she should have been. Sometimes we may have phrases like these ones, more than enough or beyond the proper limit. So these sentences will also be changed with single to only. She speaks too politely. She speaks too politely. That means if you are having single to plus adjective or adverb, in this case, sometimes you may have adverb also, okay? Adjective or adverb. She speaks too politely because politely this is adverb, okay? Adjective नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि with over, extreme, then she should be और then she should have been, ठीक है। इनको रिप्लेस करके हम beyond the proper limit और more than enough का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो केसेस हैं ये हमको ध्यान रखने होंगे कि ये जो जितने भी केसेस हैं ना, ये must be, should have been और must have been, इसके अलावा extremely, over, beyond a proper limit, ये सारे के सारे जो phrases और words हैं ये सारे के सारे words और phrases टू को ही कवर करते हैं, सिंगल टू प्लस एडवर्ब और एडजेक्टिव को कवर करते हैं, ठीक है। She speaks politely more than enough, यानी इनका भी जो मीनिंग है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में ही जाता है, यानी वो जितना पोलाइटली बात करती है उतना लगता नहीं है वो पोलाइट है, ठीक है। इनका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव मीनिंग
Okay, after this comes the last one, last use of removing or adding to. ठीक है, last use of removing और adding to. इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज. ठीक है, to adjective passive form infinitive. If you are having infinitive in passive form, अभी तक हमने किया the hill is too high to climb, लेकिन अब क्या हुआ to be climbed. Hill is too high to be climbed. So in such case, how the changes can be taken place? To will be changed into so. To be any of the phrases. Means you can change this sentence in both the voices, in active voice and passive voice also. Okay, so if you have to change in passive voice, so this will be the rule, same that subject. Now here you will have to add can not be or could not be plus P3 because it is a passive form. ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना होगा. इन सबके बाद सेकंड वर्ब के बाद बी का यूज करते हुए थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा. ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप एक्टिव वॉइस में भी उसी सेम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर वही जो फर्स्ट रूल हमने किए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में रिमूविंग टू वाले, वही रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे. तो आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं. लेट्स सी वन एग्जांपल. The hill is too high to be climbed. The hill is so high that it cannot be climbed. It cannot be climbed. Or the hill is so high that none can climb on it. और आप ऐसे भी कर सकते हैं that no one can climb it or on it. दोनों को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया हमारा. None can climb on it और no one can climb it. ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस. ठीक है, तो ये हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में. तो आप भी हैं, आप दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजीली बन जाए उस तरह से बनाएं. ठीक है, एक और थिंग है यहाँ पर है कि द हिल इज टू हाई टू बी क्लाइंब. यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि कौन हिल जो है वो क्लाइंब कर रहा है. ठीक है, तो जब हमें पता ना हो तो हम नन का यूज कर सकते हैं, नन और नो वन का. लेकिन अगर सपोज करिए ये तो हमारे रिटन में है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बात कर रहा है. लेकिन सपोज करिए आप ग्रुप में हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपने लिए बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट या फिर वी कैन नॉट क्लाइंब इट. ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है, यानी वी मेन सब्जेक्ट का भी यूज हो सकता है पर्सनल प्रोनाउन का. ठीक है, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड. अब यहाँ पर वापस उसी तरह से एडिंग टू. द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड. यानी कैन नॉट बी प्लस 3p आ गया तो तुरंत हमने इसको पहचाना कि ये पैसिव वॉइस है. द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट to be. Okay, cannot be है to be solved. Okay, ठीक इसी तरह से अब ये क्या है, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट. ठीक है, तो ये हमारा उन्होंने दिया है एक्टिव वॉइस में. यानी कि क्वेश्चन आपको पैसिव वॉइस में भी मिल सकता है, क्वेश्चन आपको एक्टिव वॉइस में भी मिल सकता है. ठीक है, तो ध्यान रखना होगा. तो ये दोनों ही इस तरह से चेंज हो सकते हैं. ठीक है, Okay students, so let us try to solve this exercise together so that you could understand the rules in a better way. So students, first of all I will suggest you should take a screenshot of this exercise 1 and exercise 2.
ओके, इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, बिफोर आई सॉल्व द एक्सरसाइज, first of all you try to solve the exercise and then see the answers. Okay, so question number 1, he was too frightened to speak. Remove 2. So here we will have to remove 2. Now as we have understood that whenever we are having 2 and 2 plus infinitive, the meaning goes in negative. जब भी 2 आता है हमारे सेंटेंस में, उसका मीनिंग नेगेटिव होता है, यानी वो इतना डरा हुआ है कि वो बोल नहीं सकता. ही नहीं सकता था, दिस इज पास्ट टेंस. सो 2 विल बी रिप्लेस्ड विथ सो. ही वाज सो फ्राइटेंड टू के बाद जो एडजेक्टिव होता है उतना सेंटेंस जो है रिप्लेस करके सो से, उसके बाद स्टॉप होना है. और उसके बाद क्या है, हमें सीधे क्या करना है, 2 यानी कि इन्फिनेटिव. ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव किस में चेंज करना होता है, फ्रेज में. दैट कैन नॉट और दैट सब्जेक्ट कैन नॉट और दैट सब्जेक्ट कुड नॉट. ओके, सो टेंस इज इन पास्ट टेंस. दैट ही कुड नॉट स्पीक. ओके, तो हमें टेंस का ध्यान रखना होगा. अगर यहाँ पर इज होता तो ये कैन नॉट हो जाता, लेकिन यहाँ पर वॉज है तो कुड नॉट होगा. ठीक है. दिव्या इज टू पेशेंट नॉट टू विन द रेस. सो वेन एवर वी आर हैविंग टू एंड नॉट टू, इन्फिनेटिव इन नेगेटिव फॉर्म, सो मीनिंग गोज इन पॉजिटिव. ठीक है, अपोजिट हो जाता है, यानी कि नॉट होता है तो मीनिंग पॉजिटिव होता है, नॉट नहीं होता है तो मीनिंग नेगेटिव होता है. ठीक है, अपोजिट हो जाता है. तो दिव्या इज सो पेशेंट. दिव्या इज सो पेशेंट. अब यहाँ पर क्या होता है, जब नॉट टू होता है तो उसका जो मीनिंग यानी कि जो फ्रेज बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा. दैट शी कैन विन द रेस smartly. Divya is so patient that she can win the race smartly. She is so shy that she cannot speak a word. Now we have to add 2. So she is, again so will be replaced with 2, 2 replaced with so, and so will be replaced with 2. She is too shy. ओके, तो टू शाय लिखने के बाद यहाँ पर भी एडजेक्टिव तक लिखने के बाद या रिप्लेस करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको स्टॉप होना होता है. और फिर यहाँ पर जब हम अपोजिट करेंगे तो सीधे हम किसको, इन्फिनेटिव को कैच करेंगे, यानी कि मेन वर्ब को कैच करेंगे. ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो भी हमारी वर्ब है उसको कैच करते हुए उसके पहले हम 2 का यूज करेंगे, और जो बीच का बाकी का जो फ्रेज है उसे कट कर देंगे. टू स्पीक, शी इज टू शाय to speak a word. To speak a word. Okay. Then there are, trees are so valuable that we must not cut them. Add 2, again 2. Trees are too valuable to. अब देखिए, दैट वी मस्ट नॉट कट देम, टू बी कट. दिस सेंटेंस विल गो इन पैसिव वॉइस. ओके, टू बी कट, क्योंकि ट्रीज जो है वो अपने आप तो नहीं कटेंगे ना. ठीक है, उन्हें कोई ना कोई काटेगा, है ना. सो ट्रीज आर टू वैल्यूएबल टू बी कट. ओके, the passage is too difficult for me to solve. To and for, pair of to, for plus pronoun. ठीक है, pronoun. ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि the passage is, first to को कैच करेंगे, उसको so में चेंज करेंगे. the passage is so, adjective, difficult. Then for will be replaced with that. ठीक है, for will be replaced with that. The passage is so difficult that,
After that, the objective case will be changed into subjective case, that I can not understand what? It. The passage is so difficult that I cannot understand it. ठीक है, इसे हम पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं. The passage is so difficult that it cannot be solved. ओके, तो चाहे तो हम इट को लास्ट में लेते हुए इसे एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, और चाहे तो हम इट को आगे लेकर के उसे पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं. ठीक है, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट, यानी कि पैसेज को या तो आप क्या करें, आप दो काम कर सकते हैं, आपको दोनों क्लियर होना चाहिए. ठीक है, फॉर मी यानी कि या तो आप प्रोनाउन को कैच करिए, उसे सब्जेक्ट में चेंज करिए. ठीक है, दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. ठीक है, और या फिर आप पैसेज को ही लीजिए, यानी जो हमारा फर्स्ट फ्रेज यानी कि फर्स्ट क्लॉज में हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन बनाते हुए. ठीक है, उसका प्रोनाउन बनाते हुए पैसेज को, इट किसके लिए है, इस पैसेज के लिए यूज हुआ है. ठीक है, सो द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड. ठीक है, तो या तो चाहे तो आप इट प्रोनाउन पैसेज का ले सकते हैं, या फिर आप सीधा जो फॉर के बाद जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हुए भी बना सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट. अगेन टू, अब यहाँ पर क्या है, टू प्लस फॉर प्लस नाउन. ठीक है, अब इसका डिफरेंट रूल था, टू प्लस फॉर प्लस नाउन. ये हमारा जो पेयर है टू फॉर प्लस नाउन. ठीक है, शी इज सो ईगर. तो जब भी फॉर प्लस नाउन होता है, आप देखिए इसके पीछे कोई इन्फिनेटिव नहीं है, इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है. ठीक है, तो फॉर विल बी चेंज इनटू दैट. शी इज सो ईगर दैट. शी इज फॉर हर रिजल्ट का मीनिंग क्या हुआ, आपको सेंस को कैच करना होगा. इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे उसमें आपको पहले सेंस को खुद कैच करना होगा कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, कि वो इतनी उत्सुक है कि वो अपने रिजल्ट के लिए इंतजार नहीं कर सकती. शी इज सो ईगर दैट शी कैन नॉट वेट फॉर हर रिजल्ट. ठीक है, शी इज सो ईगर दैट शी कैन नॉट वेट फॉर हर रिजल्ट. The class is noisy beyond the proper limit. Now add 2. Add 2. So as I told you that whenever we have single to plus adjective or adverb, this single to is changed in different ways. So here they have given beyond the proper limit. The class is too noisy. ऐसी कंडीशन में जो भी आपका आगे का फ्रेज है पूरा कट करते हुए वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब जो भी होती है उसके पहले हम टू का यूज कर देते हैं, सिर्फ टू का यूज करते हैं और उसके बाद सेंटेंस को फिनिश कर देते हैं. पूरा का पूरा फ्रेज कट हो जाता है. ठीक है, तो द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज ओवर नॉइजी, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, द क्लास इज नॉइजी देन इट शुड बी. इसके कई बहुत सारे रूल्स थे ना. द क्लास इज नॉइजी देन इट शुड बी, द क्लास इज नॉइजी देन इट शुड हैव बीन. ठीक है, इनके 5-6 रूल्स हैं. तो इन सब का जो अपोजिट होता है, यानी कि जब भी एड टू होता है तो सिर्फ हमें टू को ही यूज करना होता है, लेकिन इसका जो अपोजिट है यानी कि रिमूविंग टू तो इजी है. ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जब आप टू को ऐड करने लेकिन जब भी हमको टू को ऐड करना होता है तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन सा रूल है. ठीक है, द सिलेबस इज टू लेंथी फॉर 1 year. तो यहाँ पर अब वही आया है, टू प्लस नाउन का यूज हुआ है ना, मीन्स फॉर प्लस नाउन, टू प्लस फॉर प्लस नाउन का यूज हुआ है. तो ऐसी कंडीशन में द सिलेबस
is so lengthy for will be changed into that 1 year, यानी कि 1 year के लिए that it, इसको सेंस को हमें समझना होगा कि वो 1 साल में फिनिश नहीं हो सकता, that it कैन नॉट बी finished or completed in 1 year. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से एक्सरसाइजेस आप और भी करें अपनी बुक से तो और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी. माई होम इज टू फार फॉर कविता टू रीच. अगेन रिमूव टू. My home is so far that Kavita cannot reach. Okay, so now match your sentences if you have solved the exercises and check how many of your sentences are correct. Okay, if possible try to tell me in the comment box also how many of your sentences are correct. Okay, in the next part I will return back soon with the changes in assertive and interrogative sentences. In transformation, how an assertive sentence is changed into interrogative and how an interrogative is changed into assertive sentence. We will study in the next part. Okay, so keep on making revision till then. Goodbye, take care, happy learning.